Dear students and my fellow viewers, I welcome you all in this lecture. Here I am going to discuss with you in today's lecture principal focus of a convex lens and the principal focus of a concave lens. As you are now well aware that from the previous lectures I am discussing with you the refraction of light, and I have discussed so many topics from the refraction of light, and in the yesterday's lecture I was discussing with you the spherical lenses and the terms that are associated, that are related to these spherical lenses. Now, principal focus of a convex lens and concave lens, they too are related. So in this lecture, we will try to understand how to define or what is the principal focus of a convex lens or a principal focus of a concave lens. यानी principal focus of convex lens क्या है और principal focus of concave lens क्या है. So let's first define the principal focus of this convex lens. Dear students, it is defined as the point on the principal axis on which the light rays coming parallel to the principal axis converge after getting refracted from the convex lens. So basically principal focus of a convex lens, it's a point on the principal axis of a convex lens. ये एक point होता है principal axis of convex lens के ऊपर जहाँ पर light rays जो पैरेलल जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो रिफ्रैक्ट होकर इस लेंस से वापस जाती है, इस लेंस से बाहर निकलती हैं, वो एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होती है. जिस पॉइंट पर वो लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं, डियर स्टूडेंट्स, उसी पॉइंट पर प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस होता है. ये डायग्राम आप बखूबी देख लीजिए. This is here the convex lens and this is the principal axis. आप देख लीजिए, these are the parallel beam of light rays, यानी जो light rays यहाँ से आ रही है and they pass through this lens, as lens is a transparent substance, so they will pass it but they will refract. ये bend हो जाएंगी, refract हो जाएंगी, but after refracting, after passing through this lens, आप देख लीजिए, we can say they meet, they converge. ये एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होती है. At that very point, यानी जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होती हैं, that is the principal focus of this convex lens. वो इस convex lens का principal focus होता है. और यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं focal length of this convex lens, यानी ऑप्टिकल सेंटर से principal focus तक कितनी डिस्टेंस है. The distance between the optical center and the principal focus of a convex lens, it is here termed as focal length. तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया. This is the principal focus of a convex lens and why. Sometimes कभी ये भी पूछा जाता है, why convex lens is a converging lens. क्यों इसे converging lens कहा जाता है? Because a parallel beam of light rays, when passes through this lens, they get converged at one point. That's why this lens is also termed as converging lens. So this is clear to you, the principal focus of a convex lens. Now, dear students, let's try to understand the principal focus of a concave lens. Dear students, it is defined as the point on the principal axis of a concave lens where the refracted rays parallel to the principal axis appear to diverge from the lens. यानी यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारे सामने है concave lens, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर बीच में सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर भी है एंड दिस इज हियर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, ऊपर से और नीचे से भी. ये लाइट रेज जब इस कनकेव लेंस के इसके थ्रू जब पास होती है, दे गेट रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी बेंड हो जाती है, निकल जाती है बाहर, बट दे गेट डाइवर्ज्ड. These parallel beam of light rays, when they refract, when they pass through this concave lens, they get diverged. ये बिखर जाती हैं. लेकिन अब अगर हम इनको बैक साइड से हम इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, पीछे साइड से, तो लग रहा है कि शायद किसी एक पॉइंट से आए. जिस पॉइंट से हमें लग रहा है कि they appear to come from, वो पॉइंट इस concave lens का principal focus कहलाता है. So that's why the principal focus of a concave lens is defined as the point on the principal axis of a concave lens where the refracted rays parallel to the principal axis they appear to diverge from the lens. यानी ये वाला पॉइंट जहाँ से हमें लग रहा है कि ये जो डाइवर्जेंट रेज हैं, ये शायद किसी एक पॉइंट से निकली है, ठीक है. सो दैट वेरी पॉइंट इज हियर, वी कैन से दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस. यानी ये वाला पॉइंट हमें क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव लेंस. अब चूंकि यहाँ पर लाइट रेज डाइवर्ज होती हैं, जब भी लाइट रेज कनकेव लेंस के थ्रू पास होती है, दे गेट डाइवर्जेड, यानी बिखर जाती हैं. दैट्स वाई कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. कभी पूछा जा सकता है, वाई कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग, बिकॉज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू इट गेट डाइवर्जेड आफ्टर पासिंग थ्रू द कनकेव लेंस. दैट्स वाई दिस लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, कनकेव लेंस में जो फोकस होता है वहाँ पर ये तमाम लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती हैं, लेकिन डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकस होता है वो असल में डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन फ्रॉम द बैक साइड जब हम उनको एक्सटेंड करते हैं तो दे अपीयर टू कम फ्रॉम. ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस में रियल फोकस होता है और इस कनकेव लेंस में हम कह सकते हैं देयर इज नो रियल फोकस बट देयर इज वर्चुअल फोकस. यहाँ पे वर्चुअल फोकस होता है.
ठीक है, लाइट रेज यहाँ पर एक्चुअली कन्वर्ज नहीं होती है, वहाँ पर कन्वर्ज होती है. सो दिस इज क्लियर टू यू. आई थिंक both principal focus of a convex lens and principal focus of a concave lens, they are now clear to you. Now dear students, with this principal focus of concave or convex lens, let's also understand sign convention for spherical lenses. जैसा कि आपको पता है कि हमने मिरर्स में भी साइन कन्वेंशंस पढ़े थे और यहाँ पर भी साइन कन्वेंशंस है लेंसेज में, तो उनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पर. डियर स्टूडेंट्स, नाउ द साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल lenses. All distances on the principal axis are measured from the optical center. तो यहाँ पर पहली साइन कन्वेंशन क्या है कि तमाम डिस्टेंसेस जो हम मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज करती है, वो हमें कहाँ से मेजर करनी है? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. दैट मीन्स फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस लेंस. ये आपको याद रखना. दूसरा पॉइंट, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे or positive, and all the distance measured in the direction opposite to that of incident ray are negative. यानी अगर हम in the direction of incident ray कोई भी distance measure करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, ये होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अपोजिट डायरेक्शन ये होगी जब हम यहाँ से वापस आएंगे. लेकिन जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट या इमेज की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, दैट इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव. लेकिन जब हम इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे कोई भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हो या इमेज की, उसको मेजर करेंगे, दैट इज टेकन टू बी एज नेगेटिव. तो यहाँ पर दूसरा साइन कन्वेंशन हमें यही कहता है. तीसरा क्या कहता है? ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर to and above the principal axis or positive. To and above the principal axis or positive. यानी तमाम वो डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से, ठीक है, टू यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से, टू एंड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमें क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है. दस वी कैन से हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट इमेज आर पॉजिटिव. जब हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंगे, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है, दैट्स टू बी टेकन एज पॉजिटिव. और हम कह सकते हैं जो भी कोई इरेक्ट इमेज बनेगी वो अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस ही बनेगी, उसकी हाइट को भी हम कह सकते हैं, उसको भी हमें क्या लेना है? पॉजिटिव. तो आपको यहाँ पर ये तीसरा साइन कन्वेंशन याद रखना है. ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव, ऊपर साइड से जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ठीक है, दैट्स टेकन टू बी एज पॉजिटिव. इसी तरह ऑल डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वो डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ये था अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, वो डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे वो क्या कहेंगे, इमेज की होगी, किसी मतलब ऑब्जेक्ट की होगी, तो दे ऑल आर टू बी टेकन एज नेगेटिव. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर हियर द साइन कन्वेंशंस. जैसा कि हमने मिरर्स में साइन कन्वेंशंस पढ़ा था, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही साइन कन्वेंशंस है, इनका आपको खास ख्याल रखना है. सो दीज आर हियर द साइन कन्वेंशंस. Now you got to know about the principal focus of convex lens, concave lens, and the sign conventions. So I hope that you have got this lecture. Go through this video lesson and increase your comprehension with this chapter as we are passing through it. So inshallah in the next lecture I am going to discuss some other important topics relevant to it. Till then, Allah Hafiz.